live. Masood? Hello, Alina. Thank you so much for the introduction. All right, let me just quickly get an idea of the participants. We have roughly 10 people over here. Sounds good. So let's get started. Hello, everyone. My name is Mohammed Masood, and I'm going to be your trainer today. I've worked with a number of different organizations in different capacities during the past, let's say, 5, 6 years. But I think namely right now I'm working in with Airlift right now. Before that, I was part. Masood, you are muted. We are not able to hear you. Sorry, can you guys hear me now? Yeah. All right, fantastic. Sorry about that. I might have missed up on a lot of things. Anyways, Alina, can you just explain to me, should I keep the language completely English or should I switch between English and Urdu? I'm not. I think I think switching is better because participants prefer that. All right, fantastic. Thank you. So, hello and welcome everyone once again. The second time, I am going to be your trainer for the day. Interestingly, I've worked with Google, Facebook, S&P Global, the World Bank, UNDP, Uber, and a number of other development sector as well as private sector organizations in different capacities. More recently, I founded my own startup by the name of Demo, which worked with consulting partners in developing and designing large-scale skills-based solutions. And right now, I'm working with Airlift as the sort of training and development lead for the entire operations division. So that's pretty much about me, and I'm really excited to lead today's session, which is going to be about the art of pitching. And pitching has been a very close thing to me because I have had the opportunity to work with a lot of startups. And we'll talk more about that because I don't want this session to be one-sided. We'll really be excited to hear from you. But before that, some house rules. So I would love if you can keep your mic muted. If you have any questions, please make sure to raise your hand. I would be switching between multiple windows. So I would have to go back to the Google Meet and see if there's a question. Uh, don't interrupt me, but even if you do, I really won't mind. If you tweet, make sure to tag me and just have a lot of fun. Uh, all right, so this is how the agenda for today is going to be like. We have roughly 1 hour, less than 1 hour, so it's 52 minutes. And how we're going to divide that up is that we have 5, 6 different activities in between. Each activity would require you to do something. And in between those, we'll have these learning and discussion sessions. We'll start with the ice breaking, moving towards understanding the SDGs. And I feel like you guys would be very familiar with the SDGs as you've applied for the solution, you've ideated, and yeah, I'm pretty sure you're going to be towards the very end of your submission, which is where the pitching would become in handy as well. But हम चाहेंगे ये कि pitching के time पे this is an additional sort of support जो आप लोगों को मिल जाए और आप बेहतर से बेहतर तरीके से pitch और submission जो है उसको craft करें. Also, one-sided session. Masood, you are muted again. I'm sorry, you'll have to let me know. This seems to Yeah. be something with the computer because I am not doing that. Can you hear me now? Yeah, you're audible. Okay, fantastic. So we'll talk about the ice breaking session in which I want you guys to actually interact as well. And moving on, we'll understand the SDGs. Then we're going to really attack the evaluation criteria, critical, because evaluation criteria says we're going to reverse engineer a lot of things. The crux of our first session is going to be the 5 Ps of pitching, the 10 points for your big break, and both of them work in combination with each other. And then towards the end, we're going to talk a little bit about what is a plan B and how to prepare for that, and your submission guidelines from the way I look at it. All right, so let's start with telling, and I've already told you guys about myself. So let's start with you guys. And we have more people join the session. Quickly, if all of you can one by one unmute your mic and tell me more about yourself, which team do you represent, and where are you from? Pakistan. That would really help you get a good start.
going to start with you. Okay, Masood, you are muted again. Essen, we're going to start with you, I know. And if we don't have Essen, then we have Green World. All right, then we have Kiran Panjwani. Hi, Kiran, would you like to introduce yourself? Alina, can you hear me? Yeah, I can hear you now. So what seems to be the issue? Why are the participants all not responding? Kiran, do we have you here? All right, so Kiran has finally responded. So computer science students from DHS Sofa University can't open my mic. That's completely understandable. All right, who do we have next? Mohammad Ahmed और मोहम्मद इशफाक और मोहम्मद बिलाल, आप तीनों में से कोई भी अपना माइक खोल के बता सकता है, अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है. सो बिलाल, आप माइक अनम्यूट करके भी दे सकते हैं, अनलेस बहुत ज़्यादा शोर है आपकी साइड पे. ऑलराइट, ठीक है जी. और हु एल्स? समीउल्लाह है हमारे पास और सुफान कुरैशी हैं एंड प्रोग्रामिंग. जी सुफान. Yes, sir. My name is Mohammad Sufyan. I am doing Bachelor Computer Science from Garrison University, Lahore. Garrison University, Lahore. Yes. Good. And I'm doing my project in technology called augmented reality. All right, very nice, excellent. तो किसने इंट्रोडक्शन नहीं कराया? इशफाक अहमद बिलाल ने करा दिया है. सो इशफाक अहमद, समीउल्लाह, रोड टू प्रोग्रामिंग एंड एहसन. Do we have all of you guys? Ishfaq has left the meeting. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम समीउल्लाह, क्या हाल चाल है आपके? I am second year computer science student. I am doing my bachelor's from DHS Sofa University. All right, so DHS Sofa से हमारे पास दो लोग हैं. अहमद जब्बार, 7th semester, Virtual University. All right, fantastic. Chalo, so we have a few introductions. Hello, sir. Happening. Assalamu alaikum. Ji. Wa alaikum assalam. Sir, my name is Muhammad Ishfaq. I am doing my third year BScs from Virtual University of Pakistan, as well as I am doing my web development by using Django. All right, Ishfaq, thank you so much for the introduction. Excited to lead this session with you guys. ठीक है, so आप लोग अपने बाकी colleagues को, अपने टीम में partners को और अगले DSCs को भी encourage कर दें अगर आप लोगों का कोई group है to join this session, because we're going to be running this. So अभी I think we started off, हम बड़े आराम से हमने शुरू किया है एक introduction से, but I think as we really get into it तो हम चीज़ों को बेहतर तरीके से चलेंगे. तो आप सारों को Google Meet का हाथ खड़ा करने वाला फीचर आता है? जल्दी से सारे लोग हाथ खड़ा करें ना. ऑलराइट, ठीक हो गया जी. अब इनके हाथ नीचे कर दें अरीना, बट मैं सिर्फ ट्राई करना चाह रहा था. ठीक है, सो आई थिंक हम करेंगे ये कि हम इस सेशन को इंटरैक्टिव रखेंगे, जहाँ पे मैं कहूँगा आप लोगों से हाथ खड़ा कर लें और किसी एक चीज़ के बारे में समझाएं, या मैं कहूँगा येस और नो तो आप चैट के अंदर टाइप करेंगे, या फिर मैं कहूँगा कि आप अपने माइक को अनम्यूट करके कर दें. बिकॉज ये इस तरह का सेशन नहीं होगा जिसके अंदर एक स्पीकर बोलता रहेगा और आप जो है उसको लगा के कुछ और कर सकेंगे. मैं इवेंचुअली आपका नाम कॉल करूँगा, तो अगर आपकी टेंशन नहीं होगी यहाँ पे तो उससे जो है हम बस वेट करेंगे पूरा का पूरा सेशन के लिए.
अच्छा, सो अंडरस्टैंडिंग द एसडीजीज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है हमें इस पूरे सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन फेस्ट को सबमिट करने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए कि वी अंडरस्टैंड दी एसडीजीज, ठीक है। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने थॉरली इनके बारे में सोचा होगा, बट मैंने चाहा ये कि हम एक रिफ्रेशर सा कोर्स कर देते हैं। एसडीजीज यूएनडीपी ने पर्टिकुलरली एक मैंडेट बनाया कि यार ये 17 पॉइंट्स जो हैं, इन 17 पॉइंट्स को हमने किसी ना किसी तरीके से अचीव करना है। और अगर आप इनकी सबसे बेसिक एग्जांपल लें, जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर 4 ले लेता हूँ, क्वालिटी एजुकेशन। तो कोई भी आपका स्टार्टअप, कोई भी आपका आइडिया जो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कंप्लीट करने के अंदर पाकिस्तान और उन सारे मुल्कों में जिनके अंदर एसडीजीज इंप्लीमेंट होने हैं फैसिलिटेट करता है, तो इट इज़ नाउ सपोर्टिंग द एसडीजीज। और उसी के अंडर, उसी सॉर्ट ऑफ रेल्म के अंदर ये गूगल ने जो सॉल्यूशंस चैलेंज है वो बनाया कि यार आपका जो भी स्टार्टअप, जो भी आपका आइडिया हो प्रोजेक्ट, इट हैज़ टू फैसिलिटेट एंड इट हैज़ टू sort of complete the sustainable development goals, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए जाना नहीं चाहूँगा बिकॉज आप लोग यहाँ पिचिंग को सीखने आए हैं, पर आई थिंक पिचिंग का कॉन्टेक्स्ट बहुत सारा हो सकता है। आप एक अपने दोस्त को कहते हैं मेरे टीम को ज्वाइन कर लो, तो वो भी पिचिंग होता है। अगर आप ये कहते हैं कि अपनी एक सॉर्ट ऑफ वालिदैन को थोड़े से आपको फंड्स चाहिए किसी चीज़ के लिए, आपको होस्टिंग के लिए पैसे चाहिए, तो अगर आप उसके लिए अपने वालिदैन को या किसी और को बताते हैं कि भाई मुझे थोड़े से पैसे देते हैं, मैंने होस्टिंग करनी है वेबसाइट पे, या एक नया फ़ोन लेना है इस प्रोजेक्ट के लिए, या अगर ऑर्डिनो की कोई किट लेनी है IoT की, तो वो भी पिचिंग होती है। फिर आप इन्वेस्टर्स की पिचिंग होती है, और फिर आपकी ऑब्वियसली एक पिचिंग वो होती है जो कि आप अपने आइडिया और सोल्यूशन को लेकर जाते हैं। तो पिचिंग हर चीज़ का हिस्सा है, और हम आज कोशिश यही करेंगे कि हमारी पिचिंग की ऐसी ज़बरदस्त तरीके से हो रही हो कि हमें किसी भी किस्म की चैलेंज करना ना पड़े। और ना सिर्फ ये कि इस सोल्यूशन के लिए आप पिचिंग को किसी भी चीज़ को आप जो है वो जा रहे हों तो उसकी पिच को आप समझ सकें, ठीक है जी। तो एसडीजीज अगेन यूएनडीपी ने बनाए हैं, 17 गोल्स हैं। हर जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो स्टार्टअप्स हैं वो इनको अकम्प्लिश करने के लिए जा रहे हैं। एंड आवर आइडिया इज कि आपके जितने भी सोल्यूशंस हैं वो एसडीजीज को फुलफिल कर रहे हैं। जल्दी से मुझे चैट में लिख के बताएं कि आपका जो आइडिया है, जिनके लिए, जिन टीम्स में से आप आए हैं, वो कौन से वाले एसडीजी को टारगेट कर रहे हैं। तो आप नंबर बताएंगे, फिर मैं यहाँ से खुद ही देख लूंगा। जल्दी से चैट में लिख के बता दें कि आप लोगों का आइडिया कौन से वाले को कर रहा है। समीउल्लाह इज 3, गुड हेल्थ। किरण इज ऑल्सो 3। समीउल्लाह और किरण आप एक टीम में तो नहीं है? शर्जील यूसुफ क्वालिटी एजुकेशन है, ऑलराइट। अलीना शुएब इज 10, ऑलराइट, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। अलीना के आइडिया पे भी हम आते हैं। शर्जील आप नए ज्वाइन किए, आप पहले नहीं आए थे। शर्जील आपका क्विकली अपना इंट्रोडक्शन देंगे अपने माइक को अनम्यूट करके। Assalamu alaikum, sir. I am Sharjeel Yunus from Islamia University, Bhavalpur, or I am also one of the organizers of Solution Fest. All right, Sharjeel, fantastic. मुझे लगा कि आप ऑर्गेनाइजर हैं तो इसलिए मैं आपके ऊपर आया नहीं, but I've realized कि आप और इन्ना दोनों भी GDSCs हैं। Fantastic. Sofan का है 9, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। Fantastic. So Sofan और किरण जो हैं, सुफान, अलीना जो हैं, इन दोनों का जो 9 और 10 है, इनको जो है हम नेक्स्ट राउंड के अंदर जरा इनके आइडियाज को एक्सप्लोर भी करते हैं और फर्दर डाउन द रोड। अच्छा, सो अगेन वी हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसडीजीज। अब गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसडीजीज तो आ गई है, अब इससे एक स्टेप आगे एक और चीज़ के ऊपर चलते हैं, विच इज़ एवेल्युएशन क्राइटेरिया। और मैं आपको बताता हूँ, एवेल्युएशन क्राइटेरिया यूजुअली लोग सबसे आखिर में देखते हैं, जब वो पूरी पिच बना चुके होते हैं, जब वो पूरा लिख चुके होते हैं, राइटअप, वीडियो बना चुके होते हैं, सब कुछ रेडी हो जाता है। बट मेरे एक्सपीरियंस के अंदर वैल्यूएशन क्राइटेरिया को आपने सबसे पहले देखना होता है। और 2 किस्म के वैल्यूएशन क्राइटेरियाज हैं आपके पास। एक है आपके पास टेक्नोलॉजी वाला, एक है आपके पास इम्पैक्ट वाला। इम्पैक्ट वाले के ऊपर मैं इसलिए फोकस करना चाहूंगा बिकॉज दिस इज वेरी क्लोज टू व्हाट वी आर गोना बी डिस्कसिंग टुडे। एंड एसडीजी से जनरली इम्पैक्ट का ही लिंक है, उन्होंने लिंक एस्टैब्लिश एसडीजी से करना है। तो हम इन 5 पॉइंट्स को एक सॉर्ट ऑफ थॉरो डीप डाइव लेंगे और इनके अंदर हम देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है और क्या वाकई में हमारी जो हम पिच सबमिट कराते हैं वो एड्रेस कर रही है कि नहीं कर रही। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि क्लियर प्रॉब्लम और चैलेंज ड्रॉन, ठीक है। तो जो आपकी प्रोडक्ट और सोल्यूशन है, क्या उसका जो मसला है, जिस भी मसले के ऊपर आपने वो प्रोडक्ट बनाई, जिस भी मसले के ऊपर आपने सोल्यूशन बनाया, वो मसला क्लियरली डिफाइंड है कि नहीं है, और वो मसला किसी भी एसडीजी के अंडर आता है कि नहीं आता।
फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि हमने एक ऐसा सोल्यूशन बनाया है जिससे जितने भी NGOs हैं जो खाने पीने का काम करती हैं वो कंसोलिडेट हो जाएंगी एक जगह पे, और उस कंसोलिडेशन के बाद वो जो खाना रेस्टोरेंट से बच जाता है वो बेसिकली इन गरीब लोगों के अंदर बांट दिया जाएगा या उन NGOs में बांट दिया जाएगा। बाय द वे रिस्क का एक स्टार्टअप है इसके ऊपर जो कि आप ऑलरेडी देख सकते हैं। तो दैट इज वेरी क्लियरली टारगेटिंग आपका SDG नंबर कौन सा हमारा यहाँ से नो हंगर नंबर 2, ठीक है। सो क्लियरली इस तरह हमारे पास वेरी क्लियर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि हमारा जो चैलेंज है वो कौन से SDG को टारगेट कर रहा है, और ना सिर्फ ये कि टारगेट कर रहा है वो उसके लिए कोई सोल्यूशन डिजाइन भी कर रहा है, ठीक है। तो पहली चीज जो हमें बड़ी क्लियरली होनी चाहिए, हर जगह पे स्टेटेड, हमारी पिच के स्टार्ट में, हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर, और पर्टिकुलरली जो गूगल फॉर्म सबमिट कराना है जो आज ही खुल गया आप लोगों का, उसके अंदर बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को बताएं। नंबर 2, effectively does the solution address the challenge? So पहली चीज है कि आपने प्रॉब्लम बतानी है, क्लियरली आपने बताना है प्रॉब्लम है कि ये मसला है, ठीक है। उस मसले के बाद आपने बताना है कि जो हमने सोल्यूशन डिजाइन किया है वो उस मसले को टैकल करता है, ठीक है। सो मेरी ऐप, मेरा आइडिया, मेरी IoT, मेरा बॉट, मेरा चैट बॉट एक्सेट्रा जो मसला है उसको करता है। जल्दी से चैट में मुझे कोई बंदा बताए कि आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, फिर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलेंगे। सुफान, अलीना, किरण, कोई बता दीजिए व्हाट इज द प्रॉब्लम जो कि आपका सॉल्यूशन चैलेंज एड्रेस करेगा। यस सर। एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री गैप, ठीक है, ये बिल्कुल एक हो गया। एक और भी बता दें मुझे कोई। मुझे जरा ये DHSFI यूनिवर्सिटी वाले भी बताएं ना, आप लोगों का क्या चैलेंज है जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग प्रॉब्लम्स, ओह दिस वन इज वेरी नाइस। I work in airlift, तो आप clearly understand कर सकते हैं कि why I'm excited about this. Anyway, so let's take this example कि ऑनलाइन शॉपिंग प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास बहुत सारी, बट ऑनलाइन शॉपिंग कौन से SDG के अंदर आएगी? इंटरेस्टिंग, ये जो कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है ना आपने ऑनलाइन शॉपिंग के प्रॉब्लम का SDG से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग को लिख देंगे जी कस्टमर्स को ऑनलाइन शॉपिंग की टेंशन होती है, उन्हें समझ नहीं आता कि ऑनलाइन शॉपिंग किस तरह कर रहे हैं, उनको चैलेंज होता है, तो इसका कनेक्शन SDG से नहीं होगा और पहले वाले 10 पॉइंट्स में आप जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लियरली इस पॉइंट को यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि यार जो मेरा आइडिया है इट इज वेरी वेल कनेक्टेड डीप रूटेडली विद दी पॉइंट्स दैट आई वांट टू गेट, और पॉइंट्स को रखने का सामने मकसद यही है कि यू आर एबल टू गेट टू द नेक्स्ट राउंड, ठीक है। Only 50 people will be selected from across the world. So we would really want that you are part of them and your team is part of them. All right. So is there evidence of any next steps? सिर्फ कागजी कार्रवाई तो नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने प्रेजेंटेशन तो नहीं बनाई हुई, कोड लिखा भी है कि नहीं लिखा, ठीक है। और जो आपकी टीम है वो उसकी फ्यूचर एक्सटेंशन को कंटिन्यू कर सकेगी कि आपने यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ कागज के ऊपर सबमिशन कर दिया, एक्चुअल प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है और आप चाहेंगे कि उसको फ्यूचर में स्केल कर सकें। याद रखें कि इसको करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट सोल्यूशन बना के उसको छोड़ दें। इसका सोल्यूशन का मतलब ये है कि वो एक रियलिटी बन सके और वो एक्चुअल प्रोडक्ट बने और वो मार्केट के अंदर आए। उसके बाद हम देखेंगे कि एविडेंस क्या है कि इस सोल्यूशन को टेस्ट किया है कि नहीं किया। अगेन, अगर आप पिच में ये नहीं बताएंगे कि यार हम गए, हमने कस्टमर्स को दिखाई, ये कस्टमर्स ने हमें ये फीडबैक दी, उस फीडबैक के बाद कस्टमर्स ने हमें बताया, पोटेंशियल कस्टमर्स ने हमें बताया कि इस प्रोडक्ट को इस तरीके से चेंज करना है, ठीक है, तो ये आखिरी वाले दोनों जो 10-10 मार्क्स हैं ये भी आप नहीं ले सकेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है, गेम ऑफ द नेम जो है ना, नेम ऑफ द गेम जो है ना, वो ये है कि आपने इन मार्क्स को स्कोर करना है, ठीक है। अगर आप इन मार्क्स को स्कोर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट राउंड के अंदर जा सकेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड while we're designing the solution, while we're submitting the sort of application form, and also while we're creating the video. All right, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब क्विकली हम जो हैं जरा आप लोगों के सॉल्यूशंस के बारे में सुनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अलीना। अलीना, यू हैव 30 सेकंड्स, जल्दी से अपने सॉल्यूशन के बारे में बताएं, है क्या वो? Okay, our solution is a platform to connect mentors and mentees, so that the students who are like in the university, they can get an actual feedback or an actual path
from an industry mentor and they can do things according to that. Because what we lack is like industry, like we don't have anyone to direct students for that. And when you are graduated, you don't know what to do next. बिल्कुल सही. So then technically आपका वाला जो है वो education को target कर रहा होगा. Education को भी target करता है. I had a meeting with Hafza on that because it was targeting education, even women वाला part भी इसको target करता है because आप उनको भी empower कर रहे हो उससे. But Hafza said this falls more into this category, तो इसके लिए आप इसको इस SGD को main लेके चलो. बिल्कुल सही. And then this is very, by the way, likely कि एक जो है वो एक से ज़्यादा SDG को टारगेट किया जा सके. ठीक है, so इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर वो एक उससे ज़्यादा कर रहा होगा. Anyways, what do we have next? Ehsan, problem is gap between laborers and contractors. Very interesting. और इस आइडिया के बारे में तो मैंने भी काफ़ी बार सोचा है. So Ehsan, आप quickly बताएंगे हमें अपने solution के बारे में? Ehsan? तो जो मेरा आइडिया है वो है कि लेबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स यानी कि जो वर्कर्स हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर्स यानी कि जो काम करवाना चाहते हैं लेबर से, उनके दरमियान का गैप एक वेबसाइट के ज़रिए बंद किया जाए. यानी कि कॉन्ट्रैक्टर्स जाएँ वहाँ पे, उनको प्रोजेक्ट्स दें, जो भी लेबर्स हैं उनको काम मिले और वो लेबर्स वहाँ से काम लें और उनके लिए काम करें. दिस इज़ माई जनरल आइडिया ऑफ सॉल्यूशन. It will be a website that will be hosting this platform, which will be connecting, which will be filling the gap between these contractors and the laborers. बिल्कुल सही. Fantastic. Thank you. और मैं एक और चीज पिच सुनना चाहूँगा समीउल्लाह और किरण में से किसी एक की तरफ से कि आप लोगों का आइडिया क्या है. अच्छा सर, हमारा आइडिया ये है कि कनेक्टिंग पर्सन हु नीड ब्लड विद द पर्सन हु वांट टू डोनेट. तो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर रिपोर्ट दैट देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 1 million patients suffering from the disease and every year estimated 5,000 to 9,000 babies are born with this deadly disease. And according to UNFPA report, the maternal mortality ratio in Pakistan is 186 deaths per lakh 1 million live births. So basically हम बना रहे हैं एक वेब एप्लीकेशन जो कि hassle free blood donation experience होगा. This work on the concept के हॉस्पिटल और मैटरनल सेंटर रजिस्टर करेंगे, उन्हें ब्लड ग्रुप्स की अवेलेबिलिटी दिखेगी इन दी नियरेस्ट ब्लड बैंक्स में जो ब्लड ग्रुप्स अवेलेबल हैं और नियरेस्ट एरिया में जो डोनर्स हैं कि जो जिस ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है हॉस्पिटल्स को, तो वो ब्लड ग्रुप उस एरिया में मौजूद है तो उनको उसकी अवेलेबिलिटी वेबसाइट पे शो होगी. Excellent, excellent. I think your idea is perfect and aligns very well with sort of हमारा health वाला जो SDG है number 3 और very clearly आपको established connection दिखा सकेंगे first 10 or 20 marks लेने के लिए. I feel like all of these ideas are excellent, but I think ये चीज़ दिखाना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से वो SDG को target कर रहा है. And I think in your very first lines, please explicitly mention करें आप लोग कि ये इस वाले SDG को target कर रहा है. इस तरीके से हम इस SDG को complete करने के लिए पाकिस्तान के अंदर help करेंगे. ठीक है, ताकि आप रियल लाइफ सिनेरियो को कोड कर सकें. ऑलराइट, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच. सो नाउ हमने जब आप लोगों की थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ 2-3 किस्म की प्रोडक्ट सॉल्यूशंस के बारे में सुन लिया है. ठीक है, एंड अगेन आई वुड इनकरेज उन लोगों को जिन्होंने अभी तक बोला नहीं है कि वो भी अपने आइडियाज करें. अब हम जाते हैं एक पिचिंग को ओवरऑल समझने में. एंड ये बाय द वे इज अ वेरी वेरी सिंपल 5 पीस. ठीक है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है और इसको हम आराम से समझेंगे. और ये चीज़ ना सिर्फ आपकी सॉर्ट ऑफ रियल लाइफ पिचिंग में इस्तेमाल हो सकती है, ये पिचिंग आपकी वीडियो बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल हो सकती है, या आप किसी अपने बंदे को पिच कर रहे हैं उसके लिए हो सकती है, या आप सिर्फ एक स्लाइड डेक बना रहे हो तो तब भी यही प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, सो पिचिंग का मतलब ये नहीं है कि आप वर्बली पिच कर रहे हैं. इसका मतलब है किसी भी किस्म की पिचिंग. आज आप इस सोल्यूशन फेस्ट के लिए पिच कर रहे हैं, कल आप अपने फाइनल थीसिस के लिए पिच कर रहे होंगे, उसके बाद आप एक जॉब के अंदर इंटरव्यू में अपने आप को पिच कर रहे होंगे, उसके बाद आप एक कंपनी के अंदर प्रेजेंटेशन को पिच कर रहे होंगे, या अपने स्टार्टअप को पिच कर रहे होंगे किसी वेंचर कैपिटलिस्ट या किसी इन्वेस्टर के पास. तो पिचिंग आपकी जिंदगी में हमेशा आपके साथ रहेगी.
which is why इसको ग्रास्प करना और समझना जो है वो उतना ही इफेक्टिव है। सुफान, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, वुड लव टू टेक योर क्वेश्चन, बताएंगे। यस सर, मेरा आइडिया जो जिस बेस पे काम कर रहा है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, आप कोई क्लॉथ बाय करते हो तो आप उसको फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो मैं उसको ऑगमेंटेड रियलिटी में आफ्टर स्कैनिंग द QR फॉर एग्जांपल फ्रॉम द वेब दैट प्रोडक्ट यू वांट टू बाय, तो उसको आप ऐप में देख सकते हो एज अ 3D मॉडल कि वो कैसा लग रहा है, तो आप उसको 3D वर्ल्ड में ऑगमेंट करके देख सकते हो। तो मुझे इसका जो कंफर्मेशन आइडिया है कि ये कौन से जीबीज में SDGs में लाई कर रहा है, ये कंफर्म नहीं हो रहा था। मैंने जो चूज किया वो 9th वाला चूज किया हुआ है। बिल्कुल सही। हम एक काम करते हैं, हम आपके लिए अभी इसकी इवैल्यूएशन क्विक स्प्रिंट लगा लेते हैं, ठीक है। सो क्विक स्प्रिंट जो है वो सबसे पहले किस तरह हो सकती है, मेरी आवाज आ रही है ना? यस। हम क्विकली जाते हैं SDGs के ऊपर और हम देखते हैं कि आपका SDGs किस तरीके से टारगेट करता है, बिकॉज हम चाहेंगे कि आप वो शुरू के 10 मार्क्स जो है उनको लूज आउट ना करें, और वही बेसिस बनती है आगे बढ़ने की, ठीक है। सो नो पॉवर्टी बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज डायरेक्टली आप पॉवर्टी को नहीं कर रहे। नो हंगर, अगेन आप खाने पीने की चीजें नहीं कर रहे। गुड हेल्थ फिर भी मुश्किल है। क्वालिटी एजुकेशन मे बी नॉट, आई डोंट थिंक इतना अच्छा सेल नहीं होता। जेंडर इक्वालिटी एक लेंस के तौर पे प्ले किया जा सकता है, बट स्टिल नहीं। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन नो, रिन्यूएबल एनर्जी नो। 8 गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यस। सो दिस इज द वन, बिकॉज गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का स्कोप इतना वाइड है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ डे आप ई कॉमर्स के थ्रू मोर जॉब्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप ई कॉमर्स के थ्रू ये एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो करे, बिजनेसेस बूम हो, स्मॉल बिजनेसेस को फ़ायदा हो, तो मोस्ट डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन एंड सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री के मुकाबले में गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा बेहतर फिट करता है। क्या ख्याल है आपका इसके बारे में सुपान? सर ये आप 8th ऑप्शन की बात कर रहे हैं, गुड जॉब? यस, मैं 8 की बात। ओके, बट मैंने Because इसमें जो इंडस्ट्री क्लिक किया इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, यस, सॉरी, ओके सर, आई एग्री विद यू। यस। एंड देन अब आपने करना क्या है? सो नेक्स्ट स्टेप सुफान फॉर यू इज कि आपने नंबर 8 के अंदर डिटेल्ड रीजनिंग के अंदर जाना है, ठीक है। अगर आप सोल्यूशन फेस्ट की वेबसाइट पे खोलेंगे तो वहां पे UN SDGs गोल शोल्स का सारा जिक्र किया हुआ है। वहां पे यू कैन एक्चुअली गो इनटू दीज गोल्स, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, और उसके अंदर सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो उन सब पॉइंट्स को आप एक्सप्लोर कर सकेंगे। इन द मीन टाइम हम आगे बढ़ते हैं अपनी डेक के अंदर और हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, और हम देखते हैं कि एक जो 5 P's ऑफ पिचिंग है वो क्या है और वो किस तरीके से आपके आइडिया को बेहतर तरीके से करेंगे। हमने ऑलरेडी बात की थी शुरू के अंदर प्रॉब्लम की, कि किस तरीके से आपने प्रॉब्लम को बताना है, बिकॉज वो उसके अंदर भी है, हमें हर जगह पे सबसे पहले प्रॉब्लम को दिखाया जाता है। तो जब आप क्लियरली एक प्रॉब्लम और एक चैलेंज आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, जितने बेहतर तरीके से आप एक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे, उतने बेहतर तरीके से अगले बंदे को उसके आगे की सारी कहानी क्लियर हो। तो ऑलवेज मेक श्योर कि बहुत लंबी कहानी ना करें, बट यू हैव डिसेंट इनफ टाइम आप शुरू के अंदर स्पेंड करें एक्सप्लेन करने में कि प्रॉब्लम उसका साइज कितना बड़ा है। जिस तरह अभी आई गेस एक सेकंड में देख लूं किसने बताया, समीउल्लाह ने बताया था हमें, ठीक है, कि भाई इतनी जो है वो ब्लड की प्रॉब्लम है, UN की रिपोर्ट के मुताबिक इतना बड़ा चैलेंज है, तो स्कोप बताना बहुत जरूरी है शुरू में, ठीक है। सो द फर्स्ट P इज प्रॉब्लम, कि आप प्रॉब्लम को हाईलाइट करें, आप प्रॉब्लम का कॉन्टेक्स्ट बताएं, आप प्रॉब्लम का साइज एंड स्केल बताएं कि यार इतने लाख बच्चे एजुकेशन से महरूम हैं, इतने लाख बंदों को खाना नहीं मिलता, इतने लाख बच्चे जो ग्रेजुएट होते हैं यूनिवर्सिटी से उनको जॉब्स नहीं मिलते, ठीक है। अजीना का ये वो था। और ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर अगर कोई इतने ज्यादा मसले हैं कि लोगों को कोई भी प्रोडक्ट जो है वो फील लाइक फिजिकल उसकी मैनिफेस्टेशन या उसकी फिजिकल सॉर्ट ऑफ अपील जो है वो नजर नहीं आती, ठीक। एंड सिमिलरली एसएम के केस के अंदर जो आपका गैप है लेबरर्स का कॉन्ट्रैक्टर्स का, तो उसके साथ नंबर डालें आप कि यार इतने घर बन रहे हैं पाकिस्तान में दिन के हिसाब से, बट लेबरर्स जो हैं वो फिर भी कम पैसे कमा रहे हैं और सारा जो मार्जिन है वो कॉन्ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपनी एग्जाम्पल के अंदर प्रॉब्लम पे फोकस करना है, उसमें नंबर्स डालने और उन्हें बताना है कि किस वजह से ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हम इसके ऊपर ये सोल्यूशन डिजाइन कर रहे हैं। और प्रॉब्लम के अंदर आपने 2 चीजों से वैलिडेट करना है, एक आपने बताना है कि यार ये प्रॉब्लम का साइज बहुत बड़ा है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है, और नंबर 2 ये प्रॉब्लम
SDGs को हिट करती है, ये SDGs की अकॉम्प्लिशमेंट में हेल्प करेगी अगर मैं इस मसले का सोल्यूशन निकाल लूंगा। देन नेक्स्ट वी हैव द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का मतलब ये है प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, द आइडिया, जिसके ऊपर ऑलरेडी आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस भी हुए होंगे डिजाइन थिंकिंग के, कि ये प्रोडक्ट और आइडिया जो है वो क्या चीज है, व्हाट इज दिस न्यू इनोवेटिव थिंग जो कि उस मसले का सोल्यूशन निकाल देगी। तो द सेकंड फोकस एरिया आपका जो कि सेकंड P बनता है वो है द प्रोडक्ट। आपने उस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है एज बेस्ट एज पॉसिबल। ये नजर आ रहा है आपको ये मार्कर, क्या है ये? दिस इज नॉट अ बोर्ड मार्कर, दिस इज बेसिकली अ टूल which can write things on a whiteboard, ठीक है। At the end of the day जो ये मसला सॉल्व कर रहा है वो ये है कि ये लिख रहा है लोगों के लिए, ठीक है। मसला ये था कि किसी को दिखाना था लिखना, और उसका टूल जो प्रोडक्ट आई वो आया मार्कर, ठीक है। तो आपने ये नहीं कहना कि यार ये मार्कर सफेद रंग का है, इसके ऊपर लिखाई लिखी भी है, इसका एक ढकना भी आता है। These are features of that product. This is not the product itself. Similarly, एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है और मैं हमेशा से देता आ रहा हूँ, जल्दी से आप सारों ने अपने माइक म्यूट करके बताना है, सनसिल्क क्या बेच रहा है? सनसिल्क शैम्पू वाले क्या बेच रहे हैं? What is their product? सर चैट में भी लिख सकते हैं आप, अपने माइक भी अनम्यूट करने के लिए सर। क्या? सॉरी मुझे आवाज नहीं आई। क्लीन द हेयर सर। यस, शैम्पू सेल कर रहे हैं। वो शैम्पू नहीं सेल कर रहे, वो ब्राइट एंड शाइनी बाल सेल कर रहे हैं, ठीक है। सो उनकी प्रोडक्ट वो चीज है जो कि नजर आ रही है, जो कि मार्केट हो रही है, ठीक है। सो सिमिलरली आप लोगों ने भी अपने सॉल्यूशंस के अंदर ये नहीं बताना कि यार ऐप में कोड ऐसा लिखा हुआ है और ये डिटेल है, ये वो। अगेन उसके टेक्नोलॉजी के 40 मार्क्स हैं, आई नो, उनको आपने कवर करना है, ये नहीं कह रहा कि उनको बिल्कुल नहीं करना, पर आपने फोकस करना है प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी के ऊपर, प्रोडक्ट के फायदे के ऊपर, कि प्रोडक्ट किस तरह। सिमिलरली प्रोडक्ट के बाद हम जाते हैं पीपल के ऊपर। कोई भी आइडिया लोगों के बगैर नहीं चल सकता, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी टीम को बताना है यार ये मेरी टीम है, ये मेरा रोल ये है, मेरे दूसरे को काउंटर का रोल ये। मुझे बहुत डिटेल के अंदर आइडिया नहीं है सबमिशन फॉर्म का, बट मैं चाहूंगा कि आप लोगों से बेहतर तरीके से समझ सकूं और हम बेहतर तरीके से उसको कर सकें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमने पीपल के ऊपर फोकस किया। पीपल के बाद आता है प्रोसेस एंड प्लान। प्रोसेस एंड प्लान अगेन आर वेरी क्रिटिकल, बिकॉज अब आप जब बता चुके हैं कि मसला क्या है, आप बता चुके हैं कि आपकी प्रोडक्ट क्या है और आपकी टीम क्या है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अच्छा अब ये तीनों क्या करेंगे, ये किधर जाएंगे, क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है। तो दिस इज वेयर यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर स्ट्रैटेजी, कि हमारी ऐप इस तरीके से फंक्शन करेगी, हमारी वेबसाइट इस तरीके से लोगों को कनेक्ट करेगी, हमारा प्लेटफॉर्म इस तरीके से लोगों को बुलाएगा साथ। और यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप बताना शुरू करते हैं उन्हें कि अच्छा भाई सबसे पहले ये लॉन्च होगी इस जगह पे, लोग आके फॉर्म भरेंगे, उसके बाद वो साइन अप करेंगे, उसके बाद हमारा मेंटरिंग सेशन होगा। उसके अलावा अगर हम एकेडमिया कर रहे हैं, उसके अलावा अगर हम कोई और डोनेट कर रहे हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म इस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से वो कनेक्ट करेगा। तो दिस इज वेयर यू पुट अप द वायर फ्रेम, उसका पूरा नक्शा, उसका आर्किटेक्चर दिखाते हैं आप। और उसके बाद हम आते हैं अपने आखिरी पी की तरफ, प्रोग्रेस। और प्रोग्रेस के अगेन उन्होंने मार्क्स दिए हुए हैं वहाँ पे, अगर आप इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को देखें तो उसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि भाई इन्होंने रियल एविडेंस के तौर पे रियल यूजर्स के साथ प्रोडक्ट टेस्ट किया कि नहीं की, 10 मार्क्स उसके हैं। और उसके बाद उन्होंने रियल यूजर्स के साथ टेस्ट करने के बाद उसको आइटरेट किया है कि नहीं किया। तो ये दोनों चीजें आपको प्रोग्रेस में दिखानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि यार हमारी ऐप अभी किस जगह पे है, उसकी रियल मैनिफेस्टेशन क्या है, ठीक है, और वो एग्जैक्टली अभी किस जगह पे है, और किसी रियल यूजर्स ने उसको टेस्ट किया है कि नहीं किया, कितने रियल यूजर्स ने टेस्ट किया है, रियल यूजर्स ने फीडबैक क्या दिया आपको कि इसको चेंज किया जाए। प्रोसेस बहुत लंबा है, समझ नहीं आ रही हमें, लोगों का आपका कंफ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आती, आपकी मार्केटिंग लैंग्वेज ठीक नहीं है। तो उस बेस्ड ऑन दैट फीडबैक जो आपको मिली है, आपने अपनी प्रोडक्ट को कितना चेंज किया है या नहीं किया, इन दोनों के भी 20 मार्क्स हैं। तो याद रखें अगेन, हर चीज के अंदर बॉटम लाइन आपकी क्या होनी चाहिए, मार्क्स को हिट करना। मार्क्स को हिट नहीं करेंगे आप तो आप अगले फेज में नहीं जाएंगे, अगले फेज में नहीं जाएंगे तो हम सोल्यूशन आप लोगों को अगले राउंड में विनर नहीं देख सकते। एक और वेरी क्रिटिकल चीज मैं अभी देख रहा था सबमिशन के अंदर ही, कि पिछले साल की उन्होंने वीडियोस डाली हुई हैं वहां पे, पूरी की पूरा सेशन जो था वो डाला हुआ है। तो आई फील लाइक आप वो वाला पूरा का पूरा सेशन एक दिन बैठ के एज अ टीम देखें
और उसको पॉज करें जहां पे यू फील लाइक कि पॉज किया जा सकता है। ठीक है जी, आप मुझे बताएं कि किस किस ने अभी तक पिच नहीं दी। अगर तो हमारे पास काफी सारे लोग हैं तो अच्छा जी, फैसल नजीर साहब, फैसल क्या हाल चाल है आपके, हमारे साथ हैं आप? तो फैसल अपना माइक अनम्यूट करें और जल्दी से अपने आइडिया के बारे में बताएं, आप किस टीम का हिस्सा हैं, कहां से हैं और आपका क्या आइडिया है। ऑलराइट, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फैसल, आप चैट में लिख दें। हम इन द मीन टाइम हम किसी और के पास जाते हैं। सो किसने अभी तक हमें आइडिया अपना नहीं बताया? मोहम्मद मोहसिन। ऑलराइट फैसल, थैंक यू। मोहम्मद मोहसिन, आप पार्टिसिपेट करें सोल्यूशन फेस्ट में। हेलो मोहसिन। अच्छा चलो, इन द मीन टाइम मोहसिन रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगाते हैं, हम चलते हैं अपने, बिकॉज अगर हम इस एक्टिविटी पे टाइम लगाएंगे तो हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं बचेगा। सो नेक्स्ट अप वी हैव 10 पॉइंट्स टू नो बिफोर योर बिग ब्रेक। अब ये 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि अगेन ना सिर्फ ये कि आपके इस सेशन के अंदर काम करेंगे, बट फिजिकल आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप ऑडियंस के सामने कभी गए हुए हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये पॉइंट्स वुड डेफिनेटली हेल्प यू get sort of deliver high quality presentations, show your passion and connect with the audience। ठीक है, अगेन मैं पिछले 45 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के नाम पता चलें, आप लोगों के सेशंस पता चलें, तो यू हैव टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। और अगर आप इन पर्सन कर रहे होंगे तो वो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आप हैं जो आप हैं, सो बी ऑनेस्ट, बी ऑथेंटिक, अपनी वो बात में बात करें और उसको कोई आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन ऑडियंस नीड्स। अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि आप लोगों की ऑडियंस की नीड क्या है, कि आप लोगों ने सोल्यूशन फेस्ट की सबमिशन करनी है। ठीक है, सो इट डजंट मैटर कि मैं आपको कौन सी रॉकेट साइंस लेफ्ट राइट ये वो पिच करता रहूं। एट द एंड ऑफ द डे आपको जो यहाँ पे टाइम लगा रहे हैं उसका मकसद एक ही है कि आप कोई नई चीज सीख सकें जो कि आपको सोल्यूशन फेस्ट के पिच के अंदर, सबमिशन के अंदर हेल्प करे। ठीक है, सो अगेन एज अ प्रेजेंटर, एज अ वो, आपने यही करना है। आप लोगों का जो अपने आइडियाज हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि यू फोकस ऑन what is the need of the listening audience. Keep it simple, concentrate on your core message. What on and on and on and messages. हम ये ऐप, ये स्टार्टअप, ये चीज बना रहे हैं, sum it up in a nutshell, remain focused, और उसके ऊपर आपने अपने core message के ऊपर focus करना है। After that, smile and make eye contact with the audience. ठीक है, again this is not relevant in your case because you're going to be submitting a video, but if you were doing it in person session, so you would have to make sure that you make an eye contact with the audience और उनको directly जो है smile करें, उन्हें बताएं, connect करें audience के साथ। Then let's start off strong। अगर आप शुरू के अंदर ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब नहीं करेंगे तो इवेंचुअली ऑडियंस डाई डाउन हो जाएगी। मेरे सेशन में शुरू में भी 12 लोग थे, अभी भी 11 लोग ही बैठे हुए हैं, कुछ ज्यादा हरकत हुई नहीं है, which is unfortunate। बट ये कि अगेन अगर आप शुरू के अंदर ही माठे माठे होंगे, अच्छा जी ये है वो है, तो इवेंचुअली आपके जो है ना बाद तक इंटरेस्ट है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो ऑडियंस की अटेंशन आपको ग्रैब करनी पड़ेगी किसी ना किसी तरीके से। तो एंटरटेन करें, इंटरेस्ट करें, क्वेश्चंस पूछें उनसे। And again, this is not relevant in your case, in this case, but this will help you in other cases, in other sort of presentations and pitches in life. Then remember the 10-20-30 rule for Gaius Kawasaki. 10 slides, not more than 10 slides, not more than 20 minutes, and the font size no less than 30 points. ठीक है, so जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, हमेशा इस चीज को 10-20-30 रूल को याद रखें। आपको भूल जाएगा तो एटलीस्ट 10-20-30 याद रहेगा। आप जाके गूगल कर लें व्हाट इज द 10-20-30 रूल। 10 not more than 10 slides when you're presenting, not more than 20 minutes, and again font size जो है, जो लिखा हुआ है बड़े बड़ा, तो वो 30 से होना चाहिए। Moving on, we have tell stories। तो मैं जितना मर्जी इस पेन के बारे में बात कर लूँ, एंड्रॉयड के बारे में बात कर लूँ, एक फोन के बारे में, फायर बेस के बारे में, जब तक कि आप फायर बेस को इंसान की नीड से कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि फायर बेस से एक बंदे की जिंदगी किस तरह चेंज हो सकती है, तो आप इस सोल्यूशन फेस्ट के अंदर बाकियों से आगे नहीं जा सकेंगे। तो बहुत जरूरी ये है कि आप वो एस्टैब्लिश करें कनेक्शन विद फायर बेस कि यार
हम ये सोल्यूशन बना रहे हैं जिसमें ये नोटिफिकेशन जाएगी, जिससे ये फायदा होगा, और उस फायदे से इंसान, वो बंदा, ये यूजर हमारा काम करेगा, और ये काम करने से वो खवातीन जो घर में बैठी हुई हैं उनकी जिंदगी चेंज होगी. तो ऑलवेज टेल अ स्टोरी, because story would be able to sell. Story will keep the audience engaged. Story will change the lives. And then use your voice effectively. Again, आपके पास वीडियो एडिटिंग की सहूलत अवेलेबल होगी तो आप उसको बेहतर से बेहतर फायदा उठा सकते हैं वीडियो बनाते हुए. बट अगर आप इन पर्सन कोई सेशन डिलीवर कर रहे हो तो मेक श्योर कि यू एम्फसाइज, यू गो अप एंड डाउन, यू फोकस ऑन वर्ड्स. किसी पे ज्यादा एक्सट्रीम में ताकत दें, किसी पे कम लगाएं. कभी आवाज अपनी ऊंची करें, कभी आवाज अपनी नीची करें, और अपनी पूरी कन्वर्सेशन को इस तरह इंटरेस्टिंग बनाएं कि यार अगला बंदा करने वाला कहे कि ऑलराइट, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर. ठीक है, ये बंदा बिल्कुल मेरा ख्याल हुआ है, द सॉल्यूशन दैट दे आर टॉकिंग अबाउट इज सो इंटरेस्टिंग. ठीक है, सो अनदर की ट्रिक इज टू मेक श्योर कि आप अपनी वॉइस को यूज करें. So, आपको क्या लग रहा है कि जो लेफ्ट पे है इसके अंदर क्या है पोस्टर? शी इज क्लियरली बोर्ड. ठीक है, उसका नहीं दिल चाह रहा यहाँ पे होने का, वो वेट कर रही है और थकी भी है, जिंदगी से आवाज़. यू डू नॉट हैव टू साउंड लाइक दैट. आपने हमेशा पैशनेट होना है, आप सॉर्ट ऑफ आई कांटेक्ट करना है, अगर आप हैंडशेक कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग वो करना है. सो रियली यूज योर बॉडी लैंग्वेज टू सपोर्ट योर पिच. एंड फाइनली द फाइनल वन इज relax, breathe, and obviously stay calm. I feel like I think मैं हमेशा अभी भी कोई छोटी सी पिच भी देनी हो, कोई छोटी सी प्रेजेंटेशन देनी हो, इंटरनली अपने कॉलीग्स को देनी हो, उससे पहले भी नर्वस हो जाता हूँ. नर्वस होने में कोई बुराई नहीं है. It's okay to be nervous. It only means that you have something to lose. But take a deep breath. If you find presenting difficult, take a deep breath and concentrate on your breathing. अपनी breathing के बारे में सोचें. Slow down. अच्छी तरह आराम से टाइम निकालें. ठीक है, मेक श्योर एंड टेल योरसेल्फ दैट यू आर रियली गुड एट दिस. एंड यू वांट टू बी हियर, यू वांट टू एंजॉय दिस. बिकॉज जब आपको लगेगा ना, ओ जी मुझे फंसा दिया प्रेजेंटेशन करने के अंदर, इसके अंदर, उसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपका डाउनफॉल वहीं से शुरू हो जाएगा. इसके इंटरेस्टिंग ये है कि अपने आप को चैलेंज करें. जब क्लास के अंदर आपको प्रेजेंटेशन मिलती है किसी को, सबसे पहले कहें कि मैं सबसे पहला बंदा हूं जो जाएगा एंड आई विल प्रेजेंट दैट. ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली शुरू में आपको वो नर्वसनेस होगी, वो होगी. But when you get there, take a deep breath. Audience नहीं खाएगी आपको. देखें उनको आंखों के अंदर और खामोश रहें थोड़ी देर. And once you're able to really absorb them, once you're really, really calm, that's when you start with your presentation. So now we've just covered 10 points that you know, then that you should know before your big break. Okay? We are going to move towards another interesting segment of storytelling. अब चक्कर ये है कि हमारे पास क्योंकि लोग वही के वही हैं, and we only have 12 minutes left, and I really want to invest time थोड़ा बहुत question answers में, तो हम इसको skip करेंगे. हम अपने सारे learning sessions को जल्दी जल्दी गुजार देंगे और फिर उसके बाद हम आपके questions और discussions के ऊपर आएंगे. ठीक है जी? Yes or no? Yes. All right. जल्दी से मुझे बताएं कौन कौन मेरे साथ है और कौन कौन सो गया है. हाथ खड़ा करें सारे. जाग रहे हैं. जाग रहे हैं जी सर. 4 लोग हैं मगर जाग जरूर रहे हैं. चलो, गुड. ठीक है जी, कुछ लोग हैं मेरे साथ. गुड. ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लान बी. प्लान बी जो है ना, इसने बड़ा कुछ सिखाया है मुझे जिंदगी में. मैं आपको बताता हूँ. पिच देने के लिए स्टेज इस सेशन को अभी मैंने स्टार्ट किया 3 दफा मेरा माइक म्यूट हो जाता है बार बार ऑटोमेटिकली. आई डोंट नो आइडिया क्या वजह है, बट मेरा माइक म्यूट हो जाता है. आप वहां पे जाएंगे, इंटरनेट नहीं चल रहा होगा. ठीक है, आपने अपलोड करना होगा, आखिरी टाइम होगा, आपका फॉर्म सबमिट होना बंद हो जाएगा, वेबसाइट क्रैश कर जाएगी. एंड आई एम श्योर आप लोगों की अपनी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई होंगी जिसके अंदर आपको ऐसी क्रिटिकल मोमेंट पे होंगे कि अगर आप प्लान बी ना करते तो वो पूरा का पूरी चीज क्रैश कर जाएगी. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट टू सक्सेस अगर आपकी कोई चीज हो सकता है वो ये है कि ऑलवेज हैव अ प्लान बी. वेदर आपने फॉर्म सबमिट कराना है टाइम पे, वेदर आपका पूरी की पूरी प्रोडक्ट का कोड है, वेदर आपकी ऐप है, वेदर आपकी सॉर्ट ऑफ वीडियो रिकॉर्ड करनी थी एक दोस्त ने जो कि आखिरी दिन आया नहीं, वेदर आपका टीम मेंबर एक उसने कहा था कि यार कौन आएगा, कौन ये करेगा.
ठीक है। तो उस सारी सिचुएशंस के अंदर आपने जो है वो अपना प्लान भी हमेशा तैयार रखना है। हमारे पास यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है बिलाल का कि पिच का मीनिंग क्या है। बिलाल, पिच जो है ना, इट इज एग्जैक्टली लाइक सेल्स कि ना, आप सेल्स कर रहे होते हैं किसी चीज की, एक बंदे को समझा रहे होते हैं कि यार ये पेन है खरीद लो, ये पानी की बोतल है खरीद लो, ये चिप्स का पैकेट है ले लो, ये सोल्यूशन है हमारा, ये हम कर रहे हैं। तो उस चीज को पिच कहते हैं, ठीक है। और पिच डेक जो है वो आपका स्लाइड्स होता है, जिस तरह ये मैं स्लाइड्स यूज कर रहा हूँ तो ये डेक बन जाता है, ठीक है। सो जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी पिच है और जो उसको सपोर्टिंग मटेरियल है वो उसका डेक है, तो ये पिच डेक हो जाता है, ठीक है। और पिच जो है वो किसी भी सिचुएशन में की जा सकती है। इसका अल्टरनेटिव वर्ड्स ये भी होता है, प्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। आप इसको सॉर्ट ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं, आप इसको सॉर्ट ऑफ ये भी कह सकते हैं, नरेशन भी कह सकते हैं, बट पिच जो है वो उस चीज का नाम है। एनीवेज, कमिंग बैक टू प्लान बी, सो ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान, ठीक है, बिकॉज बहुत सारी सिचुएशंस में होगा, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आएंगे और वो आखिरी ऐसी मोमेंट पे आएंगे जब आपको पता ही नहीं होगा कि क्या करना है, ठीक है। वर्क टू फाइंड द नेक्स्ट पॉसिबल सोल्यूशन। बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, मैं टर्की में था और हमारा रिक्शा खराब हो गया और रिक्शा नहीं, वो स्कूटर एक रेंट की हुई थी और उसका स्टैंड टूट गया। तो सरिया, पता है ना आप लोगों को, सरिये वाली तार होती है जिससे सरिया को बांधा जाता है, उसका स्टैंड टूट गया। 10 मिनट में अगर मैं स्कूटर से 3-4 किलोमीटर दूर ना पहुंचता तो वो स्कूटर वाला भी मुझे फाइन कर देता बिकॉज वहां पे रेंट पे दिया हुआ था, और मैं अपनी बस भी मिस कर देता जिसने एयरपोर्ट पे जाना था मैंने। तो मैं एकदम से, स्कूटर खराब हुआ, लेटा, उसका स्टैंड फंस गया था अंदर, मैंने लिटरली रोड पे देखना शुरू कर दिया कि क्या मिलेगा। एकदम से मेरे हाथ में एक तार सी आई, वो सरिये वाली तार थी। अल्लाह का करना देखो, मैंने उस तार से जो स्टैंड को बांधा, ठीक है जी, मेकशिफ्ट सा एक हाथ रखा उसे और स्टार्ट करके किक करके चल पड़ा। अगर तो मैं कहता ना ओ जी मैं मिस हो गया है, कोई प्लान बी, हाथ पांव नहीं मारता, तो प्रॉब्ली मैं वहां रह चुका होता और पता नहीं कितने ज्यादा पैसे दे के अगली फ्लाइट पे आया होता। तो मेक श्योर कि आपका प्लान बी रेडी हो, ठीक है, और वो किसी भी टाइम पे आ सकता है, और आपका कंटिजेंसी प्लान हो, फॉल बैक मैकेनिज्म हो, ठीक है जी। अब हम क्रिएट तो करना चाहेंगे प्लान बी, बट अगेन हमारे पास टाइम कम है, तो हम जो है फोकस करेंगे आखिरी पॉइंट पे जो कि हमारी आज के इसका है, विच इज द वीडियो सबमिशन। अब और हम दूसरी सबमिशन पे भी बात कर लेंगे, बट आई थिंक वीडियो सबमिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी चीजें वुड बी विजुअल इन नेचर, तो उसके अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप वीडियो सबमिट कर रहे हैं तो उसको एडिटिंग, यूज द पावर ऑफ एडिटिंग, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल ऑनलाइन एडिटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उनको यूज करें, अपनी टीम को शो करें, चाहे वो अलग अलग जगहों पे बैठी हुई हैं, वो सारी एक ही जगह पे बैठे हैं आपके साथ। गेट क्रिएटिव विद ग्राफिक्स एंड पर्टिकुलरली मोशन ग्राफिक्स, इन द सेंस कि अगर आप लोगों की वेबसाइट है तो वेबसाइट को दिखाएं। So this is how our website will look like. We'll have introduction on the top, we'll have the submission page over here, and this is where it will be. अगर आपकी ऐप है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज करें ऐप की और वो दिखाएं, दिस इज हाउ द फ्लो विल लुक लाइक, ठीक है। हर फोन के अंदर, एंड्रॉइड और iOS के अंदर अब स्क्रीन रिकॉर्डर आता है, ठीक है, तो उसका यूज करें एंड पुट दैट विद इन योर वीडियो कि अच्छा यार ये इस तरीके से इनका सोल्यूशन काम करेगा, ठीक है। एंड अगेन फोकस आपने करना है सोल्यूशन पे, फोकस ऐप के बटनों पे नहीं करना, फोकस टेक्नोलॉजी पे नहीं करना, जिक्र करना है बट बहुत ज्यादा अटेंशन टाइम नहीं देना। 2 मिनट का टाइम है आपके पास टोटल, तो यू हैव टू यूज दैट रियली वाइजली। एंड देन जहां जरूरी हो, सिर्फ मैसेज विजुअल देने के लिए या कोई चीज दिखा रहे हैं, तो यूज द पावर ऑफ म्यूजिक, अच्छा सा म्यूजिक डालें बैकग्राउंड में, एनर्जाइजिंग किस्म का, ताकि जो भी जजेस हैं और जो पैनल है उनको लगे कि यार इन्होंने वाकई में एक ऐसा कमाल का सोल्यूशन बनाया है, ठीक है। पर आई थिंक पॉइंट ए स्टैंड्स आउट ऑन टॉप कि यूज वीडियो एडिटिंग, यूज द पावर ऑफ वीडियो एडिटिंग, बिकॉज उसके बगैर आपकी वो वीडियो अच्छी नहीं बन सकेगी। सो मुझे जल्दी से हाथ खड़ा करके बताएं कि कितने लोगों ने जो आपका सबमिशन फॉर्म है वो देख लिया है सोल्यूशन फेस्ट का, और यस और नो भी कर सकते हैं। शर्जील देख चुके हैं, बस एक ही बंदा है जिसने देखा है फॉर्म, सुफान ने नहीं देखा, कोई मसला नहीं, हम क्विकली फॉर्म को खोल लेते हैं यहाँ पे ताकि हम वो देख सकें, बिकॉज इससे आगे मेरे पास स्लाइड्स तो कोई खास नहीं है, मैंने तो सिर्फ आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स ही लेने हैं। पर आई थिंक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों की हेल्प करेगी वो ये कि अगर हम उस फॉर्म को देख लें, ऑलराइट, शेयर दिस टैब। सो ये फॉर्म है जिसको आप लोगों ने सबमिट कराना है, ठीक है। इसका लिंक आपके उसके अंदर ही आ रहा है। 15 मार्च से ये फॉर्म, तो आपके पास 16 दिन है, which is
good enough time. You only have one representative from your. ये नहीं होना चाहिए कि 3 मेंबर्स आपके डिफरेंट जो हैं वो इस फॉर्म को सबमिट करा दें। हर बंदे को चाहिए कि वो सिर्फ टीम कंसोलिडेट करे, इसको गूगल डॉक के ऊपर लिखें पहले सारे सवालों को, ठीक है, और उसके बाद जब आपको सारे सवाल गूगल डॉक पे पूरे हो जाएं तो उसके बाद इस फॉर्म को सबमिट कराएं, ठीक है जी। जितनी भी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और चीजें हैं वो इधर लिखी भी होंगी, सपोर्ट के लिए इस पे Sir, you're not audible. Masood, you are muted. Sorry guys, there's something wrong, but thank you so much for sharing. So I was just saying कि ये basic चीजें अभी तक कि you are part of GDSC अपनी Masood, you are muted again. यार ये I have no idea why this is happening, but I'm just gonna pin myself on the actually pin this. अच्छा, I should be audible now. Yes, you are. All right. So अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कि किस क्लब का आप हिस्सा हैं। इसके अंदर अगेन आपने पाकिस्तान की अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा होगा आपका, वहां से आप सिलेक्ट कर लेंगे। Who is your team? Again आपने बताना है select all that apply. Please share GDSC related activities that you participated in. तो आपने किस तरह के सेशन में अटेंड किया है। I think this session would also be part of that. And then हम अब क्रक्स पे या काम की बात पे आते हैं। प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ? याद रखें कि अगर आपको कोई पुराना प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम करते आ रहे हैं तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे लाजमी नहीं है कि नया प्रोजेक्ट हो। और यहाँ पे अब आप सिलेक्ट करेंगे अपना SDG गोल, ठीक है। आप एक से ज्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि चेक बॉक्स है। तो मेक श्योर करें कि 5 नहीं सिलेक्ट करने, प्लीज डोंट डू दैट। 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ताकि प्रिसाइसली उनको पता हो कि आपने जो प्रोडक्ट बनाई है, जो सोल्यूशन है आपका, वो इस वाले SDG को टारगेट कर रहा है, ठीक है। सो एग्जैक्टली अगर आपका हेल्थ में है और वो थोड़ा बहुत जेंडर को भी टारगेट करता है तो जेंडर को ना लाएं दरमियान में, हेल्थ में लाएं एंड हेल्थ को ही वो करें, ठीक है। सिमिलरली कहीं से अगर स्मॉल तरीके से कोई टच करता है, फॉर एग्जांपल जो ये पार्टनरशिप्स है आखिरी वाला, पार्टनरशिप्स तो हर किसी ना किसी तरीके से पार्टनरशिप्स को टच करेंगी ही करेंगी, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि आप जबरदस्ती उसके अंदर डालें। बी वेरी फोकस्ड in terms of what your solution is trying to solve. उसके बाद हम देखते हैं जी सबमिशन, आपके प्रोडक्ट का गिटहब का लिंक। तो अगेन आपका गिट का लिंक यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके अलावा प्राइवेट रिपोजिटरी में तो नहीं है, अगेन टेक्निकल चीजें हैं। फिर हैं जी आपकी वीडियो गाइडलाइंस एंड टॉप एग्जांपल्स। अब ये सारी की सारी गाइडलाइंस आपको देखनी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये सारी वीडियोस देखनी है, ठीक है जी। ये टॉप 10 डेमोज हैं पिछले साल के। ये आपको बताएंगे कि यार ये वाली वीडियो से ये अच्छा था, इस वाली से ये अच्छा था, इस वाली से ये अच्छा था, इस वाली से ये अच्छा था। तो आज से आप लोगों का रिसर्च का असाइनमेंट का टास्क शुरू हो जाता है। ये सारी की सारी वीडियोस को आप लोग देखना शुरू करें, ठीक है, और एज अ टीम बैठ के देखें, ताकि आप लोग कहें कि अच्छा यार इस वाले ने ये चीज बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन की, लेट्स पिक दिस अप। दूसरे वाले ने ये किया, लेट्स पिक दिस अप। और 2 मिनट का टाइम बहुत थोड़ा होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्टार्ट से खत्म हो जाएगा। बट बिकॉज यू हैव टाइम टू डू दैट, आपने एडिट करके भेजनी है तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। अनलिस्टेड वीडियो आपने अपलोड करनी है यूट्यूब पे, उसका लिंक डालना है और उसको शेयर कर देना है। उन्होंने खुद भी बताया, हैव अ वॉइस ओवर इन द बैकग्राउंड एक्सप्लेनिंग ऑल द फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ योर सॉल्यूशन एज यू आर डेमोइंग देम। If you do a voiceover, minimize the background music to make sure you can hear the speaker clearly. Yes, very important point. जब आप voiceover कर रहे हैं तो obviously music को नीचे ले आएं, start में music लाएं, end पे लाएं, बाकी कम कर लें, ठीक है। So again उसके बाद आपके पास नीचे है डेमो वीडियो डालने का लिंक, ठीक है जी। यहाँ पे आप अपना लिंक डाल देंगे वीडियो का। लिंक के बाद कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है डिस्क्राइब कि आपका कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हो रहा है और किस तरह आप इंस्पायर हुए करने के लिए। 150 कैरेक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली बड़ा पैराग्राफ लिखा जाएगा इसके अंदर। इसके डिस्क्रिप्शन को पहले एक वर्ड डॉक्यूमेंट में या एक गूगल डॉक में बना लें और उसके बाद उसको सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर करें। उसके बाद हमारे पास है जी कि सॉल्यूशन जो है वो हाउ डज योर सॉल्यूशन एड्रेस द चैलेंज यू आर लुकिंग टू सॉल्व। 20 मार्क्स हैं इस चीज के। यू हैव टू एक्सप्लेन कि ये प्रॉब्लम थी और हमारा सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम को इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है,
ठीक है जी। जो आप लोगों ने चीजें बताई उसको अभी से लिखना शुरू कर दें, वर्जन 1 बनाएं, फिर वर्जन 2 बनाएं, फिर वर्जन 3 बनाएं, और अपनी टीम को कहें कि आपके ख्याल में ये ठीक है, अपने टीचर को दिखाएं, अपने मेंटर्स को दिखाएं कि हम ये सोल्यूशन सबमिट करा रहे हैं, ये 4 रिस्पॉन्सेज है मोटे मोटे, डू यू थिंक इट इज सॉर्ट ऑफ, बिकॉज याद रखें कि आपका टेक सोल्यूशन जितना मर्जी एडवांस्ड हो, अगर आप यहाँ पे अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अच्छी तरह उसको पिच नहीं करेंगे, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी तरह नहीं देंगे, तो उनको नहीं पता चलेगा, ठीक है। सो आपके जहन के अंदर वो बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे बहुत जबरदस्त है, यूनिवर्सिटी का बेस्ट प्रोजेक्ट है, बट जब तक कि आप उसको आगे एक्सप्लेन उस तरह नहीं करेंगे, उस तरह रिसीव नहीं किया जाएगा, वो उस तरह चलेगा नहीं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास इस फॉर्म के आखिर में क्या है जी, अच्छा अभी काफी सारे हैं, फिर है जी हमारा फ्यूचर स्टेप्स, नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, ठीक है जी। उसके बाद है जी वॉक अस थ्रू द स्टेप्स दैट यू टुक टू टेस्ट योर सोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन 10 मार्क्स, कि आपने किस तरीके से उसको टेस्ट किया। वीडियो के अंदर भी जिक्र करना है इसका, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर बताना भी है उसका, कि हमने टेस्ट करने के लिए इस सोसाइटी के अंदर गए, इस यूजर के पास गए, इस ऑडियंस के पास गए, और हमने जाके इस चीज को टेस्ट किया उनके साथ, और उन्होंने हमें ये फीडबैक दी, और फिर बेस्ड ऑन दैट फीडबैक हमने अपने सोल्यूशन को टेलर किया और हमने उसको मॉडिफाई किया। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर दैट योर टीम चूज फॉर द सोल्यूशन। अगेन दिस इज अ टेक्निकल क्वेश्चन एंड आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से इसको रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, पर उन्होंने नीचे बताया हुआ है टेक्निकल कंपोनेंट्स, बैक एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टूल्स यूज्ड। तो इन सारी चीजों के आपको बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं, आप बताएं कि यार टेक्निकल कंपोनेंट्स क्या क्या थे, बैक एंड इसमें है, फ्रंट एंड इसमें है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये यूज हुई है, टूल्स और प्लगइन्स ये वाले यूज हो रहे हैं, ठीक है। और प्रिसाइसली आप उन्हें बता दें कि वो इस पोर्शन ऑफ द सोल्यूशन के लिए यूज हो रहे हैं। एंड देन फाइनली हमारे पास है हाईलाइट वन चैलेंज दैट यू फेस्ड ड्यूरिंग और बिल्डिंग योर कोड, टू इंक्लूड डिटेल्स ऑन हाउ यू एड्रेस द चैलेंज, और चैलेंज था क्या, कि आप जब बना रहे थे तो हमें कोड में ये चैलेंज हुआ, ये हुआ था, एंड देन एनी फीडबैक दैट यू हैव फॉर गूगल प्रोडक्ट्स। अगेन जब उनका गूगल सोल्यूशन फेस्ट है ये सोल्यूशन, तो वो चाहेंगे ये कि अगर उनकी टेक्नोलॉजीज आपने यूज की हैं तो उनको भी कोई फीडबैक मिल जाए, ठीक है। और आखिर में ऑब्वियसली साइन अप ऑन द ईमेल है। सो दैट्स अबाउट इट, दैट्स ऑल दैट टाइम दैट वी हैव राइट नाउ, बट आई वुड लव टू टेक योर क्वेश्चंस नाउ एंड स्टॉप स्पीकिंग, जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ। We've covered a number of different things, but मैं चाह ही रहा था because every pitch is different, and this one is going to be in the form of a video as well as a submission of a form. So it would be very ideal for me to go through that and मैं उसके ऊपर आप लोगों की help कर सकूं। तो over to you guys, आप लोग हाथ खड़ा करें, एक एक करके सवाल पूछते जाएं, anything that you want to know. जी सर, आपसे स्टार्ट करते हैं। सर ये कितने मिनट्स की वीडियो होगी ये जो अभी सबमिट करनी है इसकी? उन्होंने लिखा हुआ है गाइडलाइंस के अंदर कि वीडियो आपकी 2 मिनट की होगी, ठीक है। तो 2 मिनट को आपको बड़ा केयरफुली डिवाइड करना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें आपने उसमें बोलनी है। सर आई आल्सो हैव अ क्वेश्चन दैट कि हम एक्सटर्नल कोई वीडियो अटैच कर सकते हैं? So, एक्सटर्नल देखें, वीडियो पूरी की पूरी आपने खुद बना के डालनी है, ठीक है। तो वो वीडियो आपने अपनी मर्जी से, डिटेल्स वीडियो, आई मीन टू से दैट अगर आपने एक पिच वीडियो हो जाएगी, ठीक है, और अगर आप एक डिटेल वीडियो साथ लिंक करना चाहते हैं, सो मैं अगर आप करना चाहेंगे भी ना, तो आप साथ सॉर्ट ऑफ उसको लिंक इसलिए नहीं कर सकेंगे बिकॉज जो जजेस है ना वो सिर्फ आपकी वीडियो को देखेंगे 2 मिनट वाली, जो इस फॉर्म है उसमें सिर्फ आपकी वीडियो का लिंक डलने की जगह है, और अगर आप उसके अंदर एक और वीडियो को लिंक करेंगे तो वो जजेस प्रोबेबली जाएं उस पर ना जाएं, कोई पता नहीं चलता, ठीक है। सो फोकस आपने करना है उसी 2 मिनट की वीडियो के ऊपर, कि आप उस 2 मिनट की वीडियो पे फोकस करें और उसको जो है बेहतर से बेहतर बनाएं, और उसकी एडिटिंग ऐसे करें कि अगर आपको कोई एक्सटर्नल वीडियो यूट्यूब पे या किसी और बंदे ने ऑलरेडी पहले से बनाई हुई है आपके सोल्यूशन की और उसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो उसका वो वाला पोर्शन काट के अपनी वीडियो में डाल दें, ठीक है। एडिटिंग अलाउ करता है आपको इस तरह की चीजें, तो दैट यूज दैट टू योर एडवांटेज। जी शर्जील, हमें पता है जी आज आखिरी दिन है, बट आई फील लाइक ज्यादातर लोगों ने सबमिट करा दिया होगा इसके लिए, वो इससे आगे के लिए तैयार हैं। किसी और के सवाल हो कोई? शर्जील, आपने आपका स्टार्टअप क्या है यार, अपने आप सोल्यूशन के बारे में बताना चाहेंगे? एक्चुअली जो मैं बना रहा हूँ तो आई थिंक थोड़ा लेट हो जाएगा, सबमिट करना मुश्किल हो जाएगा उसका। नहीं बिल्कुल लेट नहीं होगा यार, आप डेफिनेटली सबमिट करेंगे ही करेंगे।
वी वांट पाकिस्तान से लोग जाएं, आप लोग ही तो हैं हमारा फ्यूचर। तो अगर आप लोग सारे जो हैं वो पीछे रह जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। इंशाल्लाह कोशिश करें। Done. So any other questions before we wrap this up? नहीं है जी? No, sir. All right, fantastic. Thank you so much, everyone. Thank you so much for your joining, and I hope this has been helpful. आप लोगों को फायदा हुआ सेशन से, कुछ कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग के अंदर, कुछ सबमिशन के अंदर, कुछ जनरल पिचिंग के अंदर, और कुछ सॉर्ट ऑफ SDGs को इंटरनलाइज करने के अंदर और उनका कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के अंदर। ठीक है, मैं आई लुक फॉरवर्ड टू सॉर्ट ऑफ रिसीविंग एंड सीइंग ऑल ऑफ योर आइडियाज। तो एक्चुअल में मैं देखूंगा कि जब आप सारे सबमिट करेंगे, और फिर मैं हफ्ता से पूछूंगा भी कि किस तरह ये सारे के सारे आइडियाज़ जो हैं वो मटीरियलाइज हुए। बट मेक श्योर ये करें कि पाकिस्तान का नाम अगर आप किसी अच्छे फोरम पे लेके जा सकते हैं और अपना आइडियाज प्रेजेंट कर सकते हैं, तो लिटरली आप उसको अपना खून और पसीना दें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, अलीना, थैंक यू, यू हैव बीन एन अमेजिंग